Okay, so here let me create a selection screen. Selection screen, begin of block. B1, for example, with frame, and we can give any name here. For example, selection, and we can give parameters for underscore p underscore matnr type matnr, and here we can close this screen. Selection screen end of block p. Okay, so just we have created this selection screen. This frame name, I think we have to define this. For example, give any other name, for example, frame. Then we have to create this. Why do you took a constant here frame? Yeah, actually, I want, it is not taking hard coded, so I'm just checking what we have to take. I don't think we have to take this constant, but this heading I forgot. I think we have to give some text element. So let me create one text element. For example, 001 and instead of this we can take text. Text 001. Okay. But I'm not sure. I forgot the syntax. I need to check. Title or no intro except after frame. No, I think I have frame title. Okay, so this title keyword I was missing. So you can see this selection screen is coming and this is coming, and this we can give the name and text symbol selection text, right? So here we can give name of material number, for example. So here if I execute this now, you can see material number. So here we can give any material number, or we can select any material number from here. Okay. Now we have to create our class. So first we will create a class. So we have to first create class definition. So I can give class name. So I can give any name. So I'm giving an LCL, for example, super definition and end class. Okay. So this is our like syntax to declare a class. Okay. Now inside this we can have different section. So for example, we can have public section, and then we can have protected section, and then we can have private section. Okay, so now what is public section? So public section is nothing but we can access public. So we can define public methods and variable. We can define public methods and variable inside this. Okay, so we can access public methods and variable from outside the class. Okay,
Now protected. So protected section is nothing, but here we can access so first of all we cannot access protected method and variable. Not 1 minute. We can access protected method variable from subclass or child class. Okay, from child class, and for this we cannot access from outside. So this is the difference in between these three things. Okay, so we can define our class like this. Okay, and we can have 3 sections, and in case of public section we can, so in every section we can define our methods and variables. Okay, so let me Okay. define one method. So in every class, there is a public section, protected section, and a private section, right? Right. So it is optional. Okay, all the 3 are Yeah, optional. optional. Yeah, optional. But But if we are defining anything, we have to define in these sections only, right? yes, so inside any section you have to define. So for Okay. example, I am defining one method here. For example, get material description, DSC, for example. Okay, and here again we will be having importing and exporting parameter. Okay, so importing parameter is nothing but what we are going to import into this method. Okay, pass this method. So for example, p underscore Maintner. Maintner, get material description. Okay, Importing. so here we can give any name. So for example, I'm giving IV, so I'm passing IV underscore Maintner. In here we have to tell the type. So which type of data I can import here? So Maintner type of. Okay, Yes. and here I can define my exporting parameter, like what it will export. So exporting, and here what I can do, IV and EV, any name I can give, underscore material description. So mat DESC, and here also I can give type. So type for this is METKX. Okay, so I have defined one simple method. I can define multiple methods also. Okay, now Importing means I will every pass the Maintner. value. I will pass this type of value inside this method. Okay. And exporting means this will return this type of value. Okay. Okay. Okay, and here I'm creating Yes. one method. For example, methods display protected. Okay, so here for example, I'm passing what we can pass, import IV underscore material description, for example. Okay, type METKX, and it does not have any exporting parameter. Okay, and the same method we can create here. Just we are creating very simple class so that we can understand the concept. Private. Okay, I can give any name here. So why I'm giving this private and protected, so that we can understand this is our private method, this is our protected method. That's all. I can give any name like this, display data, anything we can give. So any doubt till now? So we have just defined these things, and this name also we can give anything. So for example, material D description.
Okay, so just I have defined my class. Why don't we have import exporting parameter in the other two? So importing parameter means I am inputting something here, and exporting means this will export this particular value out of this method. And here we don't have any exporting, it means it will not export anything, this method. So we can have either importing, exporting, or only exporting. So anything we can have. But in private section, as you said, that display private importing IV mat D. So IV underscore mat D, how will I identify is that variable is defined or not? So this is the variable we are defining. So here this variable Okay. we have defined, Ah, and here this okay. variable we have defined, and here this variable we have defined. Okay. Why I have kept different names, so that you will understand like this can be different. Mhm. Okay. Okay, so just simple three methods we have defined. And we can also, like I said, we can also define data in every section. So let me define one data for underscore L underscore message type string. Okay, Mhm. let me check whether it will take string type. matkx is unknown. Why maktx? Sorry, my bad. maktx. How I know this type? Because I have to display SC11 material description, right? So it is stored in MAKT table. And if I come here, so if I pass material number and language, it will give me a description, right? Yes. So this is the type of our description. So this type I have mentioned everywhere. maktx. Okay. So I think till now everything is clear. So I have, let me declare this instead of I, let me make it private. And So, Abhishek, always this protected and private section will not have any exporting parameter, right? Exporting line. no, we can have, but our functionality is, we are, see, in display I don't want, we can add anything. So what I said, any method can have importing parameter, exporting parameter, or both, or without it also. This is what here it can have, no issue. If you want, we can have output. If, see, why I'm creating this method, because I just want to print the One second, data. someone is at my door. One second. What one? Again, maktx. Mm, Class LC does not have a class LC also yeah, for implementation. yeah, implementation we have to do, yes. 1 minute. Yeah. Vijit, have you come? Yeah, I'm there. Vijit is not there. Okay.
But Abhishek, apart from this class, did you get time to work on other work also, like freelancing work? Yeah, I manage at my. Okay, so you work Saturday, Sunday. No, no, no. Okay, So I manage at with my office. okay, See, I am individual contributor. So oh, and every yes, sprint work is assigned to me. So it is up to me like how I can manage the things. okay, Yeah, sorry, I'm back. Yeah. yeah. Okay, we were in that exporting Yeah. EV output. So we can have any of the parameter like importing, exporting, or without it also we can have anything. We can declare methods, multiple methods also. So as of now, for example, if I need one more method, for example, here, some importing a type I, for example, and one more parameter I want here. So B type I and exporting C type I. So I can have multiple function methods also. I can declare multiple data also. Okay. Here also I can declare data public type I value 10, for example. So public number, for example. So anything we can declare. So this is our declaration part. Any doubt here in definition? So we have just created class with 3 sections, and in each section we have defined methods and data. Methods and data, methods and data. And what this will does pro message type string? Just I have given declared just one variable, that's all. We will try Okay. to use this variable in our program, and we will see like how protected public and private variables are working. Okay. Okay. So now let's implement this. Okay. So just here we have just declared, and now we are implementing. Abhishek, this in the protected section, you are importing material description and your output is also material description. Yeah, so that's why I have not written. So you told me like, can we write? So just for you, I have made this. So you don't have to pass material in protected section. I mean, like in public section, you have passed material. See, you are confusing two And, things. Okay, it's my bad. Okay, let me explain first. So let me open Notepad. Okay. We are just creating very simple example. Okay, so what we are trying to create, let me explain you that. हम क्या करेंगे? We will take one material number as input. Okay, ठीक है? Material number. Then what we will do? We will call one method, for example, get material description, something like this. इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा? Material number, right? Material number and और ये language. आउटपुट क्या देगा? या लैंग्वेज ऑल्सो, राइट? बट हम सिंपल रख रहे हैं, हम वो नहीं सीख रहे हैं, मतलब Yeah. समझ रहे हो? वी आर जस्ट Yes. लर्निंग हाउ वी कैन डू द थिंग. आउटपुट क्या देगा ये? Okay. ये हमें आउटपुट में देगा डिस्क्रिप्शन. ये समझ में आया? ये एक मेथड हो गया. अब दूसरा मैंने किया डिस्प्ले के लिए, उसके लिए हमें क्या इनपुट देना है? हम डिस्क्रिप्शन देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब ये देंगे, वो डिस्प्ले कर देगा, राइट लिख देगा, तो इसमें मुझे आउटपुट नहीं चाहिए. लेकिन अगर तुम्हें सीखना है कि इसमें तुम्हारा डाउट क्या था कि सर इसमें हम आउटपुट नहीं देते क्या प्रोटेक्टेड में, तो दे सकते हैं, लेकिन मेरी फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं चाहिए. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मेरा ये डिस्प्ले मेथड क्या करेगा? जस्ट इट विल प्रिंट द आउटपुट.
तो इस केस में मुझे अपने मेथड से आउटपुट नहीं चाहिए, मतलब एक्सपोर्टिंग नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन चाहिए तो आई कैन राइट। ओके, अगर मैंने आर यू पब्लिक में गेटिंग? कुछ लिखा नहीं होता, पब्लिक में अगर कुछ लिखा नहीं होता तो मैं ये सब प्राइवेट में लिखता, मटेरियल पास करूंगा और आउटपुट में देखो एक्सपोर्टिंग मैं होगा और इनपुटिंग होगा। पब्लिक में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक में हम क्या लिखते हैं, हम पब्लिक में वो कोड लिखते हैं जो हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं। दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये मेथड कहीं भी लिख सकते सही हैं, पर्पस। हम कोई सा भी मेथड कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगर वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या फंक्शनलिटी है। अभी जैसे अगर मैं मेथड चाहूँ गेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर जब मैं इसको कॉल करूंगा गेट डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा आउटसाइड द क्लास। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये मैंने प्राइवेट बना दिया। तो मुझे पब्लिक में कौन सा मेथड रखना है, जो कि मुझे आउटसाइड द क्लास कॉल करना है। अच्छा। समझ रहे हो? अब मैं जैसे मान लो ये मेथड यहाँ लिख दूं, ये यहाँ लिख दूं, मैं गेट डिस्क्रिप्शन कॉल करूंगा, लेकिन इसमें मैं डिस्क्रिप्शन पास ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन तो यहाँ से मुझे मिलेगा ना, और ये फंक्शन तो मैं आउटसाइड क्लास कॉल ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तुम कंफ्यूज हो रहा है। देखो तीन सेक्शन, मैं फिर से बताता हूँ, वी हैव 3 सेक्शन, और मैं भी कुछ प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट ये सिखा रहा हूँ कि इन सेक्शन का क्या काम है, दैट्स ऑल। प्रोग्राम हमारा कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट इट इज टेकिंग वन इनपुट एज अ मटेरियल नंबर, and then it is getting the description, and then it is printing the description with these two methods, जो कि अभी हमने उसका कोड लिखा नहीं है, अभी हम वो कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने डिफाइन किया है। देन वी विल इंप्लीमेंट दिस मेथड, कि ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, और ये मेथड क्या करेगा। इसमें हमने एक्सपोर्टिंग क्यों नहीं दिया? क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो हम दे देते। इसमें मैंने एक्सपोर्टिंग क्यों दिया सम वाले में? क्योंकि जरूरत है, क्योंकि मैं ए बी पास करूंगा तो मुझे आउटपुट में सी चाहिए, उसका आउटपुट। तो इट्स डिपेंड्स ऑन अवर नीड कि हम क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। वी कैन गिव एवरीथिंग एवरीवेयर, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा, एवरीथिंग एवरीवेयर, वी कैन राइट एनी मेथड एनीवेयर, लेकिन हमें कैसे लॉजिकल लिखना है ना। नहीं समझे? अगर हम लॉजिकल नहीं अच्छा। लिखेंगे तो फिर काम नहीं करेगी वो चीज जैसे हमें चाहिए। जैसे आप गेट डिस्क्रिप्शन है, आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपका पर्पस क्या है? गेट डिस्क्रिप्शन हम क्यों लिख रहे हैं, पब्लिक में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें उसको आउटसाइड द क्लास कॉल करना है। ठीक, क्यों आउटसाइड द क्लास कॉल करना है? अगर मैं, क्योंकि मुझे इसमें मटेरियल नंबर पास करके डिस्क्रिप्शन चाहिए, अगर मैं इसको आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं करूंगा तो कैसे काम करेगा प्रोग्राम? लेकिन मुझे इसको नहीं आउटसाइड द क्लास कॉल करना, ना इसको करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये मेथड मैं इसके अंदर से भी कॉल कर सकता हूँ विद इन द क्लास, और आउटसाइड करना है तो मैं इसको पब्लिक बना दूंगा, तो इसको भी आउटसाइड कर सकता हूँ। समझ रहे हो? इसको मैं यहाँ से पब्लिक, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये मेथड भी आउटसाइड कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या इनसाइड कॉल करना है, क्या आउटसाइड कॉल करना है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हैं तो समटाइम्स वी वांट कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो आउटसाइड द क्लास कोई नहीं कॉल करना चाहिए, उसको कोई उसको चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी है ना उसकी वैल्यू। या फिर अब कोई ऐसा हम फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमने इंटरनल क्लास की यूज के लिए बनाया है, मैं नहीं चाहता कि ये कोई आउटसाइड द क्लास इस फंक्शन को कॉल करे। ये फैसिलिटी किसमें नहीं थी? फंक्शन मॉड्यूल हमारे फॉर्म परफॉर्म में नहीं थी। ये फैसिलिटी इसमें है कि वी कैन प्रोटेक्ट अवर मेथड्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द प्रोग्राम। वो विद इन क्लास ही यूज हो सकते हैं, विदाउट, मतलब आफ्टर क्लास नो वन कैन एक्सेस और चेंज दोस थिंग्स। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इस सिनेरियो में तुम्हें लग रहा ठीक होगा है। कि अरे क्यों मैं प्रोटेक्टेड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये तो मैं पब्लिक में भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन जब वो यूज केस आएगा तुम्हारे सामने, कि जब तुम्हें लगेगा कि नहीं ये मुझे आउटसाइड एक्सेस नहीं देना है, उस टाइम के लिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि जिस फंक्शन के लिए तुम्हें आउटसाइड नहीं देना है उसको तुम प्रोटेक्टेड या प्राइवेट सेक्शन में डाल सकते हो, अच्छा। जिसको देना है उसको तुम पब्लिक अच्छा। में डाल सकते हो। एज ऑफ नाउ हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वो यूज के सही नहीं, लेकिन हम उतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग अभी नहीं कर सकते, राइट, एज ए फर्स्ट प्रोग्राम। तो जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं कुछ मेथड यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है प्रोग्रामेटिकली। ओके। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमने ये पे ये वाला मेथड यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये वाला यहाँ क्यों नहीं लिखा। वी कैन राइट एनीथिंग एनीवेयर। वो हमारा जब यूज केस आएगा उसके हिसाब से फिर हमें सोच के लिखना है कि कौन सा हमारा पब्लिक मेथड होगा, कौन सा प्राइवेट होगा, और कौन सा प्रोटेक्टेड होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैंने अपना एक मेथड पब्लिक बना दिया, एक प्राइवेट बना दिया, एक प्रोटेक्टेड बना दिया,
तो प्रोग्रामेटिकली कैसे डिफरेंस है आपस में, समझ रहे हो कि कैसे प्राइवेट मेथड कॉल होगा, कैसे प्रोटेक्टेड कॉल होगा, कैसे पब्लिक होगा। अगर हम ट्राई करेंगे प्राइवेट को कॉल करने का तो वो आउटसाइड क्लास होगा कि नहीं होगा। और ये हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज केस ऐसे होते हैं कि जो कि अभी हमें ऐसे समझ में नहीं आएंगे, व्हेन वी गेट सम कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट जब ही हम समझ सकते हैं। जैसे मुझे मान लो एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एक्सेल डाउनलोड करता है और एक्सेल को फॉर्मेटिंग करता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता जो मेरा फॉर्मेटिंग लॉजिक है वो कोई डायरेक्ट कॉल कर पाए। मैं क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसमें हो सकता है कुछ ऐसे वेरिएबल यूज किए हैं जो कि जो मेरे पब्लिक मेथड कॉल करके वो प्राइवेट मेथड कॉल करके वो वेरिएबल यूज करता है। लेकिन अगर कोई आउटसाइड से कॉल कर लेगा वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, तो हो सकता है मेरा पब्लिक सेक्शन का जो मेथड उसको कॉल कर रहा है उसका लॉजिक बिगड़ जाए। तो मैं उसको बाहर कॉल से प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ कि नहीं, ये केवल कॉल होगा तो मेरे मेथड से कॉल होगा, आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये सिनेरियो आएंगे तुम्हें जब तुम एक्चुअल कोडिंग करोगे। लेकिन हमें वो समझना है कि अगर हमने ऐसे ऐसा डिफाइन किया है तो इन तीनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो अभी हम वो समझ रहे हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कि एक मेथड यहाँ पर है, एक मेथड, ये जस्ट मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है ना, हम कोई सा भी मेथड कहीं भी लिख ओके, सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास, इस क्लास को वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्लास ऑल्सो, ठीक है, इन वन प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लास, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ डिफाइन किया है वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। तो फर्स्ट हमने क्या किया है, कौन सा किया, मेथड गेट मैट मैट DESC, राइट। तो हम इसको भी एंड मेथड, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस मेथड का कोड रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें इनपुट क्या आ रहा है, IV मैटर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, एक ही वैल्यू चाहिए, राइट मुझे, सेलेक्ट सिंगल, देखा था हमने, सेलेक्ट सिंगल एक वैल्यू सिलेक्ट करता है, राइट। और उसमें क्या करना है, MAKTX, हमें MAKTX ही चाहिए, MAKTX फ्रॉम MAKT टेबल, वेयर फ्रॉम, इनटू कहाँ करना है उसको, इनटू IV मैटर में, कि इसका इंपोर्टिंग पैरामीटर है, राइट। सॉरी एक्सपोर्टिंग में करना है, ये इसका एक्सपोर्टिंग है, तो एक्सपोर्टिंग में मैं इसको सेव कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आ जाएगा मेरा, इस पैरामीटर में आ जाएगा, क्योंकि इस मेथड का एक्सपोर्टिंग पैरामीटर हमने ये डिफाइन किया, इसका टाइप MAKTX है, तो MAKTX की वैल्यूज में हम सेव कर सकते हैं। किस कंडीशन में करना है, वेयर MATNR इक्वल्स टू, जो भी इंपोर्टिंग है, जो भी हम इंपोर्ट करेंगे इसमें उसके बराबर MATNR होगा। एंड लैंग्वेज भी हमें देना पड़ेगा, तो SPARS है शायद उसकी फील्ड, देखते हैं एक बार लैंग्वेज की फील्ड क्या है, SPRAS, सॉरी SPRAS इक्वल्स टू, हम यहाँ हार्ड कोड ई दे देते हैं फॉर एग्जांपल फॉर नाउ, ठीक है। तो ये क्वेरी क्या करेगी कि जो भी हम मटेरियल नंबर यहाँ पे पास करेंगे IV मैटर, वो उस मटेरियल नंबर प्लस ई के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन आएगा वो इसमें डाल देगा। एनी डाउट? ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ये सिलेक्ट सिंगल, यस। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये मेथड इंप्लीमेंट करना है। तो सारे मेथड इंप्लीमेंट करना जरूरी है जो भी हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, मेथड डिस्प्ले प्रोटेक्टेड एंड मेथड, एंड मेथड, इसमें क्या करें, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले करना है, और इसमें हमें इनपुट डिस्प्ले क्या आ रहा करना है, ये इनपुट आ रहा है। तो हम इसको IV लेंगे मैट, और इसको क्या कर डिस्प्ले देंगे, IV राइट, मैट, हाँ राइट, सॉरी, राइट, IV_मैट, ठीक है। और हमें क्या करना है, डिस्प्ले, सॉरी मेथड, प्राइवेट, कौन सा मेथड करना है अभी, डिस्प्ले प्राइवेट, राइट। तो ये जस्ट हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन कर दिया, एंड मेथड, और यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट, जो भी इसमें इनपुट आएगा वी विल राइट दैट, ठीक है।
तो क्या राइट करना है? IV आई met D. विंडोज, क्योंकि इसमें इंपोर्ट आएगा। ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल। अपना क्लास का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ठीक है, लेट्स एक्टिवेट दिस। एरर क्या आ रही है भाई? सम नहीं किया अभी, सॉरी। हमने एक सम भी बनाया था, राइट? तो मेथड सम एंड मेथड, और वो मेथड क्या करेगा? फॉर एग्जांपल सी इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट? इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं? ए बी सी। तो सी में हमें क्या करना है? ए प्लस बी करना है, तो हमने सिंपल वो कर दिया। लेट्स सी, C ओ is not सॉरी, defined. सी स्पेस देना भूल गया मैं। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू कॉल अवर प्रोग्राम। ठीक है, हाउ वी कैन कॉल? सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, राइट? क्योंकि जब भी एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ट्रिगर होगा। तो अभी तक जो मैं लिख रहा था ये मैं सब कहां लिख सकता हूँ? मेरे टॉप इंक्लूड में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब ग्लोबल थिंग्स हैं। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट ऑफ Yes. सिलेक्शन में क्या करना है? हमें अपना मेथड कॉल करना है, राइट? तो हाउ वी कैन कॉल अवर मेथड? सो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? वी कैन डिफाइन ऑब्जेक्ट of our class. So for example I can define object data, any name I can give, obj super। ठीक है, माई क्लास का नाम सुपर LCL सुपर है, तो मैंने दे दिया। टाइप ref2, क्या नाम है क्लास का अपना? LCL सुपर। ठीक है, ये मैंने अपना क्या किया? ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया फॉर दिस क्लास, type with use type ref2। this is type reference to this class, and now I have to create my object। so create object, this create object will create the object। so this is defining and this is the creating। okay, now मुझे क्या करना है? ये मेथड कॉल करना है। this is my private method, sorry, public method। so how I can call? so obj super description। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे पास करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग पैरामीटर पास करना है, राइट? so here we have to write our, for example, call method this and exporting। so जो भी यहाँ पे इंपोर्टिंग था उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टिंग क्या था? ये था, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो IB मैटनर में हमें क्या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? तो ये मुझे एक्सपोर्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टिंग IB मैटनर इक्वल टू P मैटनर। P मैटनर क्या है? जो हमारा सिलेक्शन स्क्रीन से आ रहा है, राइट? we have defined this P मैटनर if you remember। whatever we enter in selection screen, it will come to this variable, and this variable we are passing to our method। and what it will be importing? this method what will import? so यहाँ क्या था? ev underscore, are you getting guys? just we are calling this math function, that's all। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट करेगा तो इसको मैं कहीं ना कहीं सेव करना है, राइट? तो मैं कहाँ सेव कर सकता हूँ? जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बनाया था, तो मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल में इसको सेव करता हूँ। this is how we can call this। let me activate this। ठीक है, and we will see, we will put a breakpoint, we will try to execute this, we will give some material number for example। ठीक है, and we will execute this। अभी ये यहाँ पे आ गया। now अगर मैं इसमें देखूं तो it has created this object। इस ऑब्जेक्ट में देखो, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें पब्लिक मेंबर ये दो हैं। ठीक है, तो ये भी इतना ही दिखा रहा है। now if I do F5, it will get inside this and it will pass value here। so description क्या है इसका? 2223। this is the description। जब मैं बाहर आऊंगा
तो उसने ये वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, राइट। तो बहुत स्मॉल प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन सही हो। सो फॉर एग्जांपल ये, तो मैंने ये मटेरियल नंबर पास किया। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इनसाइड दिस, तो यहाँ पे तुम देखोगे जी डिस्क्रिप्शन में क्या आ गया, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है। परफेक्ट। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉल अ पब्लिक मेथड ऑफ अ क्लास। तो हमने क्या किया, क्लास बनाया, इंप्लीमेंटेशन किया, उसको ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल कर दिया। अब मान लो मुझे इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है, एंड आई विल कॉल दिस डिस्प्ले प्राइवेट मेथड फॉर डिस्प्ले। हाउ कैन आई कॉल, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कॉल मेथड ओबीजे सुपर अंडर सुपर डैश प्राइवेट की जगह मैं प्रोटेक्टेड कॉल करता हूं, ठीक है। दिस इज अवर प्रोटेक्टेड मेथड, डिस्प्ले प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड यहां में क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्टिंग। क्या एक्सपोर्ट करना था हमें, जो भी यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या हुआ है, इंपोर्ट हुआ है IB_ matters। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, डिस्क्रिप्शन पास करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स ट्राई टू एक्टिवेट दिस नाउ। सो फर्स्ट लेट्स चेक, सी। तो भी क्या बोल रहा है, एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मेथड इज नॉट अलाउड। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने क्या किया, एक आउटसाइड द क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया, आउटसाइड द क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये प्रोटेक्टेड मेथड कॉल नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी केवल ये मेथड कर सकता है जो भी हम डिफाइन हमने किया है पब्लिक में, बट नॉट प्रोटेक्टेड वन, वो उसको एरर देगा। अगर मैं इन द सेम टाइम प्राइवेट मेथड अगर कॉल करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल प्राइवेट, और इसमें एक्सपोर्टिंग क्या था, IV मैट_d, राइट। तो इसकी जगह अगर मैं मैट_d पास करूं और अगर मैं चेक करूं, तो देखो ये बोल रहा है वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेथड। तो इससे क्या हमें समझ में आया कि अगर हमने कोई भी चीज प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखी है, वी कैन नॉट कॉल दैट आउटसाइड द क्लास। ओके, ठीक है, यस, है ना। अब इसको कहाँ कॉल कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन कॉल दिस इनसाइड हियर। फॉर एग्जांपल इफ size sub RC0, इट मींस वैल्यू अगर सेलेक्ट हुई है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉल दिस मेथड हियर। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वी कैन कॉल डायरेक्टली यूजिंग मी। why it is not exporting, call method using me, okay। so me क्या है, me is predefined object, ठीक है। तो अगर हम उसी क्लास के अंदर से अगर उसी क्लास का कोई सा भी वेरिएबल या कोई सा भी मेथड कॉल कर रहे हैं, वी कैन यूज दिस मी कीवर्ड, है ना। इसको मैं जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये मी ऑटो डिफाइंड है, ठीक है। तो यूजिंग मी वी कैन कॉल। तो अभी देखो मैंने क्या किया कि ये पब्लिक मेथड है, इस पब्लिक मेथड के अंदर मैंने ये प्राइवेट मेथड कॉल किया है, और अगर मैं ट्राई टू एक्टिवेट करूंगा तो इट विल